Hello students. So in our previous lecture we have discussed about the projection of line. So in this online lecture we are going to move forward with our next chapter, that is related to the projection of solids. Okay, so in this PPT we are going to discuss about how we perform the projection of solid. Okay, so this is your unit 3. So in unit 3 the whole syllabus is defined as the we have to study the projection of solid and as well as the section of solid. So for this extra class we will look forward the projection of solid only, and for the next upcoming classes we will move forward for the section of solids also. Okay, so this is the content what we have to study before our mid semester examination of 2. Okay, so this we have to cover today. Okay, so what is it? This is the solid and its classification. So if you talk about a solid, what is a solid? Solid means what? Like see, first of all, what we have studied? We have studied about the projection of point. Okay, then we move forward for the projection of line, then projection of plane. But this is not in your syllabus. I don't know why this is not in your syllabus. It should be, but I don't know. This is not in your syllabus. Not mentioned in your syllabus. Okay, and the next topic is the projection of solid, what we have to study in this class. Okay, so we have to move forward directly from line to the projection of solid, which is bit hectic. I don't know why the projection of plane is not mentioned in your syllabus, because moving directly from line to the solid is not justified. So the projection of plane should be present there. So for the basic understanding that what's really going on with the projection of solid, that we can easily understand, but directly moving from line to the solid, that's a bit challenging. Okay, so we will not go into that much depth. Once we will come back to our regular classes, then I will give you a brief discussion about the projection of plane, and then we will move forward the projection of solid. But as per this your next examination of the mid semester examination 2, we will just take a look for the projection of solid, like how we will proceed further in this chapter. Okay, so if you move further, like what is solid, the first question arises, like what is solid. So if you will talk about a solid, so what the definition is defined here: a 3D object which have length, breadth and thickness, and bounded by the surfaces which may be either parallel or curved or combination of the two. Okay, so what does it mean? सी, अपने पास पॉइंट में क्या था, हम लोग को एक पॉइंट मेंशन किया हुआ था. ओके, इसके बाद एक लाइन में क्या था, हमको एक लाइन दी हुई थी. इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने एक प्लेन के बारे में डिस्कस किया. ठीक है, कि एक प्लेन अगर रखा हुआ है किसी दो एक्सिस के बीच में, ठीक, तो ये क्या होती थी, मेरी एच पी था और ये मेरा वी पी था. ओके, और ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 3D ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे कि मेरे पास क्या है, जैसे आपने देखा होगा आपके पास एक क्यूब होता है. ऑल्सो वी हैव द क्यूबॉइड एंड प्रिज्म एंड pyramid. So there are many more other 3D objects. Okay, so we will have to design the projections of these 3D objects, ठीक, including the cubes, cuboid, prism, pyramid and many more. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरे पास जो ये भी ऑब्जेक्ट है, इसमें मेरे पास क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है. हाइट होती है या फिर आप थिकनेस भी बोल सकते हैं. ठीक, तो ये हम लोग को तीन डिफरेंट पैरामीटर्स हमको प्रोवाइड किए जाते हैं. ओके, सो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो सॉलिड्स है इनको क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है.
ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं सॉलिड को बेसिक प्राइमरी डिवाइड करूं इसको, तो उसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। पहली कैटेगरी कौन सी है, राइट सॉलिड, और दूसरी है मेरे पास ऑब्लिक सॉलिड। राइट सॉलिड का मतलब क्या है, राइट सॉलिड का मतलब ये है कि राइट सॉलिड का मतलब क्या हुआ, राइट सॉलिड का मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग बना रहे हैं, लेट अस सपोज हम लोग क्या बनाते हैं, एक हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक क्या बना लूँ मैं, जैसे लेट अस सपोज हम लोग कोन बना लेते हैं, ठीक। तो कोन के बारे में तुम्हें एक आइडिया है, ठीक है। ये कोन कैसा होता था, नीचे से सर्कुलर होता था और ऊपर एक जगह जाकर उसका ये एपेक्स होता था, ठीक है। और ये एक रेडियस होती थी, ठीक है, डाया थी, ये रेडियस थी इतनी, ठीक है। ये इसकी हाइट होती थी, इसको हम लोग क्या बोलते थे कि ये मेरी स्लैंट हाइट है, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये मेरी स्लैंटेड हाइट, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा अगर एक कोन होता था तो ये इसको हम लोग क्या बोलते थे, ठीक है। ये क्या थी, ये थी एक एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग क्या डिफाइन कर रहे थे, एक्सिस ऑफ कोन, ठीक। और अगर मेरे पास क्या हो जाए, अगर एक सिलेंडर हो जाता है, ठीक है, इसमें ऊपर सर्कुलर नीचे भी सर्कुलर और एक इसकी हाइट, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एक्सिस प्लॉट करता था तो क्या होती थी, वो इसके अपर सेंटर एंड लोअर सेंटर दोनों से पास करती थी, इसको हम लोग क्या डिफाइन करते थे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसको हम लोग क्या डिफाइन कर रहे थे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। तो देखो अगर ये एक्सिस, ठीक है, अगर ये एक्सिस परपेंडिकुलर जा रही है ऑब्जेक्ट के, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा राइट सॉलिड है। और ऑब्लिक सॉलिड का क्या होगा, जिसमें मेरी एक्सिस होगी वो इंक्लाइंड हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं तुम्हें इसका फिगर दिखा दूंगा तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि राइट सॉलिड और ऑब्लिक सॉलिड के बीच का मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ऑब्लिक सॉलिड में क्या होता है, ये जो एक्सिस होती है ना, ये ऐसे ना जा करके ये यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अपनी पोजीशन से इंक्लाइंड हो जाएगा। जैसे तुमने एग्जांपल देखो पीसा के मीनार है, तो उसमें क्या हो रहा है, ऐसे ही इंक्लाइंड हो जाएगा। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा ना, ये इसके बॉटम से बाहर चला जाएगा। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा ऑब्लिक सॉलिड है, ठीक है। और ये वाला जो सॉलिड है मेरा, ये क्या है, राइट सॉलिड है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है, ऑब्लिक सॉलिड का डिजाइन नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ राइट सॉलिड का डिजाइन पढ़ना है, ठीक है। तो अगर राइट सॉलिड की बात करी जा रही है तो इसमें हमारे पास पॉलीहेड्रॉन होते हैं और कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग रिवॉल्यूशन के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। इसको भी डिस्कस कर लेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, एक पॉलीहेड्रॉन थे और एक था सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसको हमने क्या बोला कि इसमें सॉलिड ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास एक सरफेस होगी, एक प्लेन होगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन कराएंगे उसको किसी एक्सिस के थ्रू। तो जो मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा सॉलिड है। और पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं, कंप्लीट सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रेगुलर पॉलीहेड्रॉन की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा क्या आता है, टेट्राहेड्रॉन आ जाता है, क्यूब आ जाता है, ऑक्टाहेड्रॉन आ जाता है, इसके अलावा फर्दर वाले आ जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर प्रिज्म की बात करता हूँ मैं, तो प्रिज्म में क्या आता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म और हेक्सागोनल प्रिज्म। और अगर पिरामिड की बात करता हूँ तो ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल और हेक्सागोन, ठीक है। इसमें से कुछ स्ट्रक्चर तुमने देख रखे होंगे, जैसे कि सिलेंडर क्या होता है ये तुम्हें पता है, कोन क्या होता है ये तुम्हें पता है, एक स्फीयर क्या होता है ये तुम्हें पता है, और मैं मान रहा हूँ तुम्हें टेट्राहेड्रॉन पता होगा, क्यूब पता होगा और ऑक्टाहेड्रॉन पता होगा, ठीक है। और प्रिज्म और पिरामिड के बीच का डिफरेंस हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेन क्या होता है, पॉलीहेड्रॉन और सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के बीच में, कि अगर मुझे किसी कोन को बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास एक ट्रायंगुलर प्लेन है, ठीक है, अगर एक ट्रायंगुलर प्लेन है और इसको मैं क्या करता हूँ, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, इस एक्सिस के अबाउट मैं इसको यहाँ से एक रोटेट करा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ओमेगा से डिपेंड किया, मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी दे रहा हूँ। तो क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, एक ही ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और नीचे एक सर्किल को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं ना, एक देखो, एक ये मेरे पास एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल को रोटेट करा के हमने क्या किया, एक कोन को जनरेट किया, ठीक है। तो जो इसकी स्लैंट सरफेस होती है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जनरेटिंग सरफेस बोल देते हैं,
ठीक है। तो ऐसे हम लोग कोन को डिजाइन करते थे। अब सिमिलरली अगर मुझे सिलेंडर को डिजाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल ले लूंगा और इसकी इस एक्सिस के अबाउट इसको यहाँ से रोटेट कर दूंगा। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये भी अपनी प्लेस से मूव करेगा। तो मूव करेगा तो क्या करेगा, एक ऐसा करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, जिससे कि मेरा कोन फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या है, तुम्हारा जो सेंटर लाइन पास कर रही है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सिस। ये किसकी होगी, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा, ये जो मुझे मिल रहा है ये मेरे पास हो जाएगा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा सिलेंडर मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो सिलेंडर के केस में ये जो होगी, ये मेरी क्या होगी, जनरेटिंग सरफेस होगी। ठीक है। और स्फीयर को अगर डिजाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्किल ले लूंगा, सर्किल को उसके डाया के अबाउट मैं रोटेट करा दूंगा। जब मैं इसकी डाया के अबाउट उसको रोटेट कराऊंगा तो क्या होगा, मुझे एक 3D स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि क्या होगा, एक स्फीयर होगा। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, इसको मैंने ऐसे रोटेट कराया तो ये क्या होगा, सर्किल जो है अपने डाया के अबाउट रोटेट करता रहेगा, तो वो मुझे ऐसा स्फीयर मिल जाएगा मुझे। ठीक है, एज अ सॉलिड। ठीक है। तो इन तीनों का एक बेसिक आइडिया तुम लोग को दे दिया। ठीक है। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके आगे वाली स्लाइड्स में क्या देखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म और पिरामिड के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, और इसमें से जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्रिज्म और पिरामिड है उनके बारे में एक बेसिक जानकारी देखेंगे कि उस पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो जैसे मैंने तुमको क्या बताया था, एक राइट सॉलिड और ऑब्लिक सॉलिड के बीच एक डिफरेंस मुझे यहाँ पे देखना था। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर मेरी एक्सिस, ठीक है, बेस के कंपैरिजन में परपेंडिकुलर आ रही है तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये फिगर जो है ये मेरा राइट फिगर है। ठीक है, राइट कोन है ये जो एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है। और ऑब्लिक कोन के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया कि इसमें जो एक्सिस आ रही है वो मेरी वो मेरे बेस से, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल ना बना के समथिंग लेस देन 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करेगी। ठीक है। तो उससे होगा क्या, अगर मैं एक ही एपेक्स पॉइंट था, सेंटर वाला पॉइंट, ठीक, इसको मैं एपेक्स डिफाइन कर रहा था, तो इसमें एपेक्स में क्या हो रहा था कि अगर मेरा ऑब्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसको जब मैं प्लॉट करूंगा तो उसका 90 डिग्री का जो एंगल आ रहा है वो बेस के सेंटर पे ना आकर के इससे कुछ डिस्टेंस पे आएगा। तो इस फिगर को मैं क्या बोलूंगा कि मेरा प्लेन कैसा है, ये ऑब्लिक है। ठीक है। और ये अगर एक्सिस जो है इसके सेंटर से परपेंडिकुलर मीच कर रही है बेस के सेंटर से, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है। तो ये राइट हो गया और ये ऑब्लिक हो गया। तो हम लोग को ऑब्लिक नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ राइट सॉलिड के लिए पढ़ना है। ठीक है। तो अगर मैं पॉलीहेड्रॉन की बात करता हूँ, ठीक है, तुमने कहीं ना कहीं इसको पहले देखा होगा। ठीक है, जैसे कि केमिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे क्या, केमिकल बॉन्डिंग, या फिर क्या पढ़ते थे, कार्बन का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पहले देखे हुए हैं। ठीक है। जैसे कि ये हो रहा है तुम्हारा टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, जो सबसे पहला ए पॉइंट पे बना है, इसको क्या बोले, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में क्या होता था, हमारे पास एक ट्रायंगल होता था, ठीक है, इसके ऊपर क्या करते थे, एक पॉइंट लेते थे, इस पॉइंट को सारे पॉइंट से कनेक्ट कर देते थे। तो इसमें हो क्या रहा था, इसको टेट्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 ट्रायंगल्स यूज हुए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, एक सरफेस ये रहती थी, 2 सरफेस इसके पीछे रहती थी, एक सरफेस जैसे ये हो गई, एक सरफेस ये वाली हो गई, और एक सरफेस रहती थी, एक ट्रायंगल रहता था नीचे। जैसे कि इसमें देखो बना हुआ है, एक ये ग्रीन बनी हुई है, एक ये ब्लू बनी हुई है, एक मुझे दिख नहीं रही है, इसके पीछे है, और एक ये बॉटम वाली। तो इसमें 4 थे, इसलिए इसको क्या बोला गया, टेट्राहेड्रॉन बोला गया। ठीक है। क्यूब में क्या हो रहा था, क्यूब में हो रहा था कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों सेम थी। ठीक है। ऑक्टाहेड्रॉन में क्या था कि अगर मैं टेट्राहेड्रॉन को उल्टा करके इसी टेट्राहेड्रॉन के नीचे और लगा देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, अब मेरे पास ये टोटल ट्रायंगल हो गए 8। ठीक है। 4 ऊपर 4 नीचे, तो इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये ऑक्टाहेड्रॉन है। हाँ, और इसके बाद अगला क्या आता है, डोडेकाहेड्रॉन। तो डोडेकाहेड्रॉन में क्या था, इनमें क्या होता है, 12 इक्वल पेंटागोनल फेसेस होते हैं। ठीक है। 12 इक्वल पेंटागोनल फेसेस को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे 3D ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डोडेकाहेड्रॉन। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आइसोसेड्रॉन। आइसोसेड्रॉन में क्या होता है, 20 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है। उनको अगर जोड़ के अगर मैं एक 3D सरफेस जनरेट कर रहा हूँ तो मैं उसको आइसोसेड्रॉन बोल रहा हूँ। ठीक है। तो इन सब के बारे में भी हमें एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है। इस पीपीटी को एक बार देख लेना। इतना तुम लोग को इन दोनों के बारे में नॉलेज की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बस अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया। एटलीस्ट इन तीनों के बारे में तो याद कर लेना, ठीक है, कि कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो राइज होता है वो होता है प्रिज्म पे बेस्ड होता है, या तो फिर तुम्हारा या तो वो प्रिज्म पे बेस्ड होगा या तो तुम्हारा पिरामिड पे बेस्ड होगा। ठीक है।
तो अब हमको सबसे पहले क्या देखना है कि एक प्रिज्म क्या होता है, इसके बाद देखेंगे पिरामिड क्या होता है और इन दोनों को बनाने का जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जब भी देखो हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिगर से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो प्रिज्म में क्या होगा ना, देखो बॉटम में ट्रायंगल था, ठीक है, तो इसमें क्या है, ऊपर भी ट्रायंगल है और मैंने उन सारी सर्फेसेस को जोड़ दिया। और ये सर्फेसेस कैसी हैं, ये सर्फेसेस जो है ना इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में वर्टिकल सर्फेसेस है। तो अगर इसकी सारी सर्फेसेस को मैं देखता हूँ, ठीक है, जैसे ये सर्फेस है, तो ये जो सर्फेस आ रही है ये कैसी आ रही है, ये होगी वर्टिकल सर्फेस। ठीक है, ऐसे ही ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये कैसी आ रही हैं, ये सारी की सारी वर्टिकल सरफेसेस आ रही हैं। किसके केस में, प्रिज्म के केस में। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे कि ये तुम्हारा कौन था, ट्रायंगुलर प्रिज्म था, तो इसका बेस कैसा है, ट्रायंगुलर है। अगर बेस ट्रायंगुलर है किसी प्रिज्म का तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और अगर किसी प्रिज्म का बेस कैसा आ रहा है, अगर स्क्वायर शेप में आ रहा है, ठीक है, ये देखो ये स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर शेप में आ रहा था, तो इसको मैंने क्या बोला, ये स्क्वायर प्रिज्म है और इसका टॉप और बॉटम दोनों ही स्क्वायर है। ठीक है, और इसकी जो एजेस हैं, ये सरफेसेस हैं, ये सारी कैसी हैं, सारी वर्टिकल सरफेसेस हैं। तो जो नीचे आ रहा है, अगर नीचे ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और ये टॉप में भी स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर मुझे कहीं पे दिख जाता है तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरे प्रिज्म का केस है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें क्या हो सकता है, नीचे पेंटागन हो सकता है तो ऊपर भी पेंटागन होगा, अगर ऊपर हेक्सागन है तो जो इसका बेस होगा वो भी एक हेक्सागन होगा। और सारे जो प्लेन होंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे प्लेन वर्टिकल प्लेन होंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है, एक इसमें क्या डिफाइंड है, एक की एक्सिस डिफाइंड है। ठीक है, तो एक्सिस कैसे निकालनी किसी स्ट्रक्चर की वो भी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर प्रिज्म के बारे में पता होने चाहिए, इन्हीं का ही प्रोजेक्शन मेनली पूछा जाता है। ठीक है, कि या तो आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म दे देगा किसी क्वेश्चन में, या तो स्क्वायर प्रिज्म दे देगा, या तो पेंटागोनल प्रिज्म दे देगा, या तो हेक्सागोनल प्रिज्म देगा। ठीक है, मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन आता है, पूछ तो इसके अलावा भी सकता है, ऑक्टागोनल प्रिज्म भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली इन्हीं फिगर से पूछा जाता है। ओके, तो ऐसे ही अगर देख रहे हैं कि इसमें पिरामिड से डिफरेंस कैसे होता है, तो देखो पिरामिड क्या होता है, पिरामिड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बेस तो इसका भी ट्रायंगुलर है, ठीक है, जैसा प्रिज्म के केस में था, लेकिन इसमें एक एपेक्स फॉर्म होता है, उसमें कोई एपेक्स नहीं था, उसमें क्या था, ऊपर भी एक ट्रायंगल बना हुआ था और जितनी भी एजेस थी, जितनी भी उसकी एजेस आ रही थी वो सारी कैसी आ रही थी, वर्टिकल एजेस आ रही थी। लेकिन जब भी हम लोग पिरामिड की बात कर रहे हैं तो पिरामिड में मेरे पास क्या हो रहा है, ठीक है, देखो बेस तो वैसा ही आ रहा है, ठीक है, ट्रायंगुलर आएगा, स्क्वायर आएगा, पेंटागन आएगा, हेक्सागन आएगा, बेस तो वैसा ही आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो मेरे पास सरफेसेस थी उसमें वर्टिकल आ रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, स्लैंट एजेस आ रही हैं, ठीक है, इंक्लाइंड हो रही हैं, और इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, ऊपर एक एपेक्स फॉर्म हो रहा है, एपेक्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगुलर पिरामिड को अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, और एक इन सबके नीचे एक सरफेस है, ठीक है, जो कि ट्रायंगुलर शेप है, जो ये शेप से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं टॉप से देखता हूँ, और अगर मैं इसको स्क्वायर पिरामिड को टॉप से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है, ये मेरी पहली स्लैंट सरफेस है, ये वाली मेरी दूसरी स्लैंटेड सरफेस है, ये मेरी तीसरी स्लैंटेड सरफेस है, ये मेरी चौथी स्लैंटेड सरफेस है, और ये जो सेंटर में मुझे दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये इस पिरामिड का एपेक्स है। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है अगर इसको मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ। ठीक है, अगर इसका मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ तो उस केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली वैसे पेंटागोनल पिरामिड के लिए बना लोगे, ठीक है, इसके बाद तुम क्या करोगे, एक हेक्सागोनल पिरामिड के लिए बना लोगे। ठीक है, तो ये सारी चॉइसेस तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, पिरामिड देख लिया, प्रिज्म देख लिया, इनके बीच का डिफरेंस क्या है वो हमने देख लिया। ठीक है, एक्सिस कैसे प्लॉट करनी है वो अभी मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन आ रहा है। तो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन को मैंने तुम्हें क्या बताया कि हम लोग कोई एक प्लेन ले लेते हैं और उसको किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करा देते हैं। तो जब भी हम ऐसे करके बनाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मैंने बताया कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस थी, मैंने इस रेक्टेंगुलर सरफेस को इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करा दिया, ठीक है, तो जब ये रोटेट करेगा तो मुझे क्या देगा, सिलेंडर देगा, और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया यही एक्सिस मेरी क्या बन जाएगी, इस सिलेंडर की एक्सिस बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है, उसको रोटेट करा दिया, ठीक है, जो उसका इस एक्सिस के अबाउट मैंने उसको रोटेट करा दिया अगर ओमेगा से। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा तो ये कोन जनरेट करेगा। ठीक है, और इस स्फीयर में मैंने क्या किया, एक सेमी सर्किल ले लिया, ठीक है, उसको उसके
डायगोनल एक्सिस के अबाउट मैंने क्या किया, रोटेट करा दिया। ठीक है, अगर इस एक्सिस के अबाउट मैंने इसको रोटेट करा दिया, जब ये रोटेट करेगा तो मुझे क्या देगा, स्फीयर देगा एज अ सॉलिड। ठीक है, तो इनको भी कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, तो हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है और स्फीयर क्या होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो भी स्लैंटेड सरफेस मिलेगी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी स्लैंटेड सरफेस को मुझे जनरेटिंग सरफेस बोलना है तो वो सिर्फ मैं रिवॉल्यूशन वाले केस में ही बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को क्या दिया है, अगर मेरे को दिया है एक पिरामिड, ठीक है, पहले से ही पिरामिड एक बना हुआ है, तो उसमें जो स्लैंटेड सरफेस है ना, अगर ऐसे पिरामिड कोई मुझे दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पिरामिड में, सॉरी, अगर ट्रायंगुलर पिरामिड था, ठीक है, अगर ऐसा करके कोई पिरामिड मुझे दिया हुआ है, अभी तो 3D स्ट्रक्चर है तो ऐसे प्लॉट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर ऐसे पिरामिड मुझे अगर दिया हुआ है तो पिरामिड के केस में क्या करेंगे, इस तो ये जो मेरा इंक्लाइंड सरफेस आ रही है, ठीक है, इसको मैं जेनेटिक सरफेस नहीं बोल सकता। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा कि स्लैंटेड एज है या स्लैंटेड सरफेस है। लेकिन इसमें जो स्लैंटेड सरफेस होगी इसको मैं क्या बोलूंगा, जनरेटिंग सरफेस है, क्योंकि यही वो सरफेस है जो मेरे लिए एक सॉलिड को जनरेट कर रही है। ठीक है, तो ये भी जैसे इस केस में क्या होगा, ये सरफेस जो आएगी इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरी जनरेटिंग सरफेस है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, इसके बाद क्या होता है, फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम का मतलब होता है किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर को बीच से कट करने के बाद जो हमें दिख रहा है। जैसे हमने कोनिक सेक्शन के बारे में डिजाइन पढ़ा था, तो कोनिक सेक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि हमने उसमें क्या लिया था, एक कोन लिया था और कोन को मल्टीपल एंगल्स में काटा था, तो उससे हमें क्या मिल रहा था, कहीं पे सर्किल मिल रहा था, कहीं पे इलिप्स मिल रहा था, कहीं पे पैराबोला मिल रहा था, कहीं पर हाइपरबोला मिल रहा था, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल थ्रू विच वी आर कटिंग दी कोन। ओके, सो फ्रस्टम का मतलब क्या है, जैसे कि एक मेरे पास एक राइट सर्कुलर कोन था, ठीक है, मैंने उसको बीच से कट कर दिया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कौन सी सरफेस मिल जाएगी, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक सर्किल मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैं उसमें कट मारने के बाद जो मेरे पास फाइनल स्ट्रक्चर बच रहा है, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं डिफाइन करता हूँ फ्रस्टम। ठीक है, और ये फ्रस्टम जनरेट किससे हुआ है, ये जनरेट हुआ है कोन से, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, फ्रस्टम ऑफ कोन बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, एक 3D ऑब्जेक्ट दिया होगा, इसको मैं क्या करूंगा, किसी भी सरफेस के अबाउट कट कर दूंगा। ठीक है, तो कट करने के बाद जो भी 3D ऑब्जेक्ट मेरे पास बचा हुआ होगा उसको मैं क्या डिफाइन करूंगा, एज अ फ्रस्टम डिफाइन करूंगा। किसका फ्रस्टम, जो मेरा बेस स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बेस 3D स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे ले रखा था उसी का बोला जाएगा। तो इस केस में मैंने क्या ले रखा था, यहाँ पे एज अ कोन ले रखा था, तो जो मेरे को फ्रस्टम रिसीव होगा वो किसका रिसीव होगा, कोन का ही रिसीव होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैंने एक स्क्वायर पिरामिड ले लिया, ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिड के केस में अगर मैंने फ्रस्टम को डिजाइन किया तो मैंने क्या किया, स्क्वायर पिरामिड था मेरे पास, मैंने उसमें एक वर्टिकल कट कर दिया। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मैंने क्या किया, मेरे पास एक स्क्वायर पिरामिड था, मैंने उसको अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से कट कर दिया, तो जो उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर जो बच जाएगा उसको मैं क्या डिफाइन करूंगा, एज अ फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड डिफाइन करूंगा। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, एक हेक्सागोनल पिरामिड अगर मैंने ले लिया, इसमें मैंने सिमिलर कट मारा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फ्रस्टम ऑफ किसका, हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड डिफाइन करूंगा, और ये कोन वाला केस हम लोग देख ही चुका है। ठीक है, अगर मैंने कोन को एक सरफेस से कट कर दिया तो जितना भी मेरा एरिया बच जाएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्रस्टम ऑफ कोन बोलूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ट्रंकेटेड सॉलिड क्या होते हैं। ठीक, ट्रंकेटेड सॉलिड का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे कि अभी तक मैंने क्या किया था, फ्रस्टम के लिए हमने क्या किया, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से कट मारा। ठीक है, तो उसको मैंने फ्रस्टम डिफाइन किया था। लेकिन अगर मैं किसी ऑब्लिक सरफेस से जाके कट मार रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो अगर मैंने इसको ऑब्लिक सरफेस के अबाउट कट कर दिया, ठीक है, तो जो मुझे ये देखो एक सरफेस मिल रहा है, इसको मैं ग्रिड बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं ट्रंकेटेड टर्म बोल देता हूँ। ठीक है, कि ये मेरा जो पिरामिड है, ये मेरा ट्रंकेटेड पिरामिड है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं कोन से सॉलिड ले रहा हूँ तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा ट्रंकेटेड कोन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये ट्रंकेट है।
ओके अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी कटिंग एक्सिस थी, कटिंग एक्सिस को मैं हॉरिजॉन्टल ना लेके एक किसी एंगल पे अगर मैं कट मार रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा ट्रंकेटेड सॉलिड है, ठीक है। और ट्रंकेटेड सॉलिड कौन सा होता है, इसके हम लोग कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कोन ले रहा हूँ तो ट्रंकेटेड कोन हो जाएगा, अगर मैं पिरामिड ले रहा हूँ तो वो ट्रंकेटेड पिरामिड हो जाएगा, और अगर मैं प्रिज्म ले रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ट्रंकेटेड प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है आगे से, हमको अभी क्या करना है, कुछ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, इसके बाद हमें देखना है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, इसके बाद इनके कुछ फीचर्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा था, उतना मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से शुरू करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।